नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औरतबी तालुका के अलग अलग सरकारी विभागों के अधिकारियों ने सरकारी वाहनों को निजी कार्यों के लिए उपयोग किया। उबर और इंडियन नेवी ने मिलाया हाथ, कंपनी देगी एक खास सुविधा। हैदराबाद होटल में बिरयानी के साथ एक्स्ट्रा दही मांगने पर बेरहमी से पिटाई, शख्स की हुई मौत। यूपी से राजस्थान तक बारिश ने किया बेहाल, पिछले 24 घंटे में यूपी में 19 लोगों की मौत। इंडिगो फ्लाइट में यात्री पर यौन उत्पीड़न का लगा आरोप, मामला दर्ज। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औरादी तालुका के अलग अलग सरकारी विभागों के अधिकारियों ने सरकारी वाहन को वे अपने निजी कार्यों के लिए उपयोग कर अपने मनमानी कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य सरकार कई सरकारी विभागों को सरकारी कामकाज के लिए वाहन दिए गए और उसमें से कई विभाग को लीज पर लिए गए वाहन प्रदान किया। कई अधिकारियों ने बीदर और औराद को आने जाने के लिए अपने सहूलत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। औराद तालुका में कई विभाग के अधिकारियों को अपने कार्यालय में आने के लिए कभी 11:30 को या कभी 12 बजे आते हैं। फिर कई अधिकारियों ने बीदर को 3 बजे और 3:30 बजे बीदर को रवाना हो जाते हैं। इस मामले में कई दफा कर्नाटक राज्य के पूर्व पशुपालन मंत्री औरादबी तालुका के विधायक प्रभुभूषण चौहान कई दफा केडीपी मीटिंग सभी तालुका अधिकारियों को औराद में ही रहने के लिए कहा था और सख्ती से चेतावनी भी दी थी। औराद तालुका की जनता ने सभी सरकारी विभागों को सरकारी वाहन को निजी कार्य के लिए इस्तेमाल करने का विरोध किया और ड्यूटी खत्म होने पर अपने घर पर रवाना होते हैं। इस अवसर पर एजुकेशन विभाग, कृषि इलाके, पीडब्ल्यूडी और पंचायत राज विभाग हो या कोई सरकारी विभाग समय पर अधिकारियों नहीं रहने से तालुका में जनता को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी विभाग के वाहन के ऊपर नजर रखना और कार्रवाई करने की मांग तालुका की जनता ने मीडिया से बात की। इस अवसर पर भीम आर्मी तालुका अध्यक्ष गौतम मेत्रे ने मीडिया से बात किए हैं। औराद से अलीम पाशा की रिपोर्ट। ನಾನು ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಭಾರತ ಏಕತಾ ಮಷಿನ್ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಏನೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜನರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಏನಿದೆ ಕೌಟಾಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೌಟಾಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ದಾಟಿ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕದ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದರ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಸುಮಾರು ನಮ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರು। ನಮ್ಮದು ಕೆಪಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೆಪಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು। ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು। ಆದರೆ ಸುಮಾರೀಗ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ತಾವು ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ತಾವು ಬೀದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 10 ಅಥವಾ 10:15 ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು। ಆದರೆ 12, 11, 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೀದರಿಂದ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಬೀದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 45 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, ಬರೋಕ್ಕೆ 45 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತಂದರೆ 1.5 ತಾಸು ಅಥವಾ 1 ತಾಸು ತೊಗೋತಾರೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರು ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ? ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಇವೇನು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವ್ರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ। ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಜನರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು। ಆದರೆ ಇವರು ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮದುವೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹುಮನಾಬಾದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇವರು ತಾಲೂಕಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಗಡಿಯಿಂದ। ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ 11:15 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಸಿಗಬೇಕು ಇವರು? ಇದೇ ರೀತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೂಡಲೇ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು। ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಾದರೂ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಅವರು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಜನರು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು। ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬೀದರ್ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ಹುಮನಾಬಾದ್ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ತಪ್ಪು। ಇದು ಸರ್ಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ। ಹಂಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್
बेंगलुरु पुलिस और निगम सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने बीबीएमपी मुख्यालय में आग लगने की घटना में मुख्य अभियंता सीएम शिवकुमार की मौत और 8 अन्य के घायल होने के लिए ग्रुप डी कर्मचारियों को जिम्मेदारी ठहराया जा सकता है। निगम की गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला में आग लगने के तुरंत बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेंट्रल डिवीजन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि गलती ग्रुप डी के एक कर्मचारी ने की थी, जो उस समय ज्वलनशील रसायनों को संभाल रहा था। कहा जाता है कि उनकी लापरवाही की अग्निकांड का कारण बनी। अधिकारी ने कहा कि ग्रुप डी कर्मचारियों को यह काम नहीं करना चाहिए। हालांकि स्टाफ का कहना है कि उन्होंने यह काम सीनियर्स के निर्देश पर किया है। पुलिस ने कहा कि पूरी तरह ठीक होने के बाद घायल कर्मी का बयान लिया जाएगा और रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। बेंगलुरु गौरी गणेश उत्सव के अवसर पर केएसआरटीसी ने बेंगलुरु से राज्य के विभिन्न स्थानों के लिए अतिरिक्त बसों की विशेष परिवहन व्यवस्था की है और 15, 16 और 17 सितंबर को विशेष बसें चलेगी। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है 18 सितंबर को राज्य के विभिन्न स्थानों और अंतर्राज्यीय स्थानों से बेंगलुरु के लिए विशेष वाहन चलेंगे। बताया जा रहा है कि केएसआरटीसी की ओर से 1200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी। केम्पेगौड़ा बस स्टेशन से बसें धर्मस्थल, कुके, सुब्रमण्यम, शिवमोग्गा, हासन, मैंगलोर, कुंदापुर, श्रृंगेरी, होरानाडु, दावणगेरे, हुबली, धारवाड़, बेलगाम, विजयपुर, गोकर्ण, शिरसी, कारवार, रायचूर, कलबुर्गी, बल्लारी, कोप्पल, यादगिरी के लिए रवाना होती है। बीदर और तिरुपति ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। विजयवाड़ा, हैदराबाद और मैसूरू रोड बस स्टैंड से मैसूर, हुनसूर, पिरियापट्टनम, विराजपेट, कुशालनगर और मेडिकेरी जैसे स्थानों के लिए विशेष बसें प्रदान की जाएंगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिरयानी के साथ एक्स्ट्रा दही मांगने एक शख्स को भारी पड़ गया। दरअसल हैदराबाद के एक होटल में दही के मुद्दे पर हुई बहसबाजी के बाद शख्स की हत्या कर दी गई। हैदराबाद पुलिस ने सोमवार को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि होटल में एक ग्राहक की बिरयानी के लिए अतिरिक्त दही मांगने पर हुई बहस के बाद होटल के कुछ कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि यह घटना रविवार रात को हुई। लगभग 30 साल का एक शख्स अपनी 3 दोस्तों के साथ रात के खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। बिरयानी खाते समय अतिरिक्त दही मांगने पर उस व्यक्ति और होटल के कुछ कर्मचारियों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। पुलिस ने कहा कि व्यक्ति और रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर एक दूसरे को मारा। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, जैसे जैसे बहस बढ़ी, दोनों समूहों में मारपीट हो गई और पुलिस होटल पहुंच गई। बाद में वह व्यक्ति और होटल कर्मचारी पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन गए और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की। हालांकि उस व्यक्ति को कोई बाहरी चोट नहीं आई, लेकिन उसे उल्टियां होने लगी और वह थाने में ही गिर पड़ा। अधिकारी ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत व्यक्ति के परिवार वालों का आरोप है कि उसे अस्पताल ले जाने में देरी हुई। पुलिस ने कहा कि शव परीक्षण से मौत का कारण पता चलेगा और हत्या का मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। मुंबई से गुवाहाटी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में सहयात्री के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में एक यात्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गुवाहाटी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इंडिगो ने बयान जारी कर कहा है कि पीड़ित ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि और जरूरत पड़ने पर इंडिगो एयरलाइन पुलिस की जांच में सहयोग करेगी। हालांकि इंडिगो ने घटना का पूरा ब्यौरा नहीं दिया है। इंडिगो के मुताबिक इंडिगो की उड़ान 6E5319 से यात्रा कर रहे एक यात्री को एक अन्य यात्री की ओर से कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर गुवाहाटी पहुंचने पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। एयरलाइन ने कहा, मुंबई गुवाहाटी के बीच इंडिगो फ्लाइट 6E5319 पर यात्रा कर रहे एक यात्री को एक अन्य यात्री से कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलने के बाद आगमन पर गुवाहाटी पुलिस को सौंप दिया गया। इंडिगो ने बयान में कहा, शिकायतकर्ता द्वारा स्थानीय पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जहां आवश्यक होगा हम उनकी जांच में सहायता प्रदान करेंगे। कैब एग्रीगेटर कंपनी उबर इंडिया ने भारतीय नौसेना के साथ हाथ मिलाया है। उबर इंडिया और इंडियन नेवी ने एक खास ज्ञापन पर साइन किए हैं। अब उबर कंपनी भारतीय नौसेना के स्टाफ और परिजनों को ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन की सुविधा दे सकेगी। बता दें कि इस पार्टनरशिप से भारतीय नौसेना के अधिकारियों, उनके परिजनों और स्टाफ को इसकी विशेष सुविधाएं मिलेगी, जिसमें उबर बुक करने पर टॉप रेटेड ड्राइवर्स की अवेलेबिलिटी से लेकर कैंसिल करने पर 0 फीस तक की सुविधा शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पति का अफेयर या सट्टेबाजी उसे दहेज हत्या के मामले में फंसाने का आधार नहीं हो सकता। इस टिप्पणी के साथ जस्टिस विकास महाजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने उस व्यक्ति को जमानत दे दी। यह केस दिल्ली के एक शख्स से जुड़ा था। उसने अपने खिलाफ आईपीसी की धारा 304B दहेज हत्या और 34 के तहत केस दर्ज होने के बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के महीनों बाद आत्महत्या कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिला को पता चला कि उस व्यक्ति का अफेयर था और शादी के बाद वह सट्टेबाजी कर रहा था, तो महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत गुजारा भत्ता, दहेज उत्पीड़न की एफआईआर और तलाक की याचिका के तहत 4 अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। उनकी मौत के बाद उनके पिता ने भी एक और एफआईआर दर्ज कराई थी। उस व्यक्ति ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी चिंता और अवसाद से पीड़ित थी और इसके लिए इलाज की मांग कर रही थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि वह 19 अप्रैल 2021 से अलग रहने लगी थी। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक चिंता और
अवसाद का इलाज करा रही थी और दहेज की मांग को उसकी चिकित्सा समस्याओं के लिए ट्रिगर नहीं बताया गया था, ऐसे उसने खुद अपने को कहा था। इसलिए याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे रखने से कोई उपयोग उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में महोबा के पास चंबल एक्सप्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जनरल बोगी में 4 सपेरों ने सांप छोड़ दिए। दरअसल ये सफेरे यात्रियों के पैसे कम देने से नाराज थे। फिर क्या था, यात्री परेशान होकर ऊपर चढ़ने लगे और डर से इनका बुरा हाल हो गया। एक यात्री के अनुसार सपेरों ने एक टोकरी से एक सांप को निकालकर बीन पर नचा रहा था। खेल खत्म होने के बाद सफेरों ने यात्रियों से पैसे मांगे। कुछ लोगों ने पैसे दिए, कुछ ने मना कर दिया। फिर क्या था, सफेरों को गुस्सा आ गया और उनकी कुछ लोगों से बहसबाजी भी हो गई। अचानक इन लोगों ने सांपों को बाहर छोड़ दिया। जनरल डिब्बे में आधे घंटे से अधिक समय तक अफरा तफरी मच रही थी, क्योंकि यात्री ऊपर भी बर्थ पर चढ़ने के लिए आपस में भिड़ रहे। कुछ यात्री खुद को बचाने के लिए वॉशरूम में छिप गए। सफेरों ने अंत में सांपों को पकड़ लिया और महोबा स्टेशन में प्रवेश करने से कुछ देर पहले ट्रेन से उतर गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने महोबा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से बात की और उन्होंने घटना की पुष्टि की। सांपों ने किसी भी यात्री को नहीं काटा, लेकिन काफी परेशान हुए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानसून एक बार फिर कुछ इलाकों में आफत बनकर लौटा है। यूपी में राजधानी लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, संभल, बाराबंकी और बरेली समेत कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश से घरों में पानी घुस गया है। सड़कें सैलाब बन गई हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हो गई है।
हालात को देखते हुए स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। राज्य के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में 228 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही रोहित ब्रिगेड ने 2 महत्वपूर्ण अंक भी अपने नाम किए। पाकिस्तान की टीम को इस मैच में 357 रनों का लक्ष्य मिला था। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान टीम की पारी को सिर्फ 228 रनों पर समेट दिया। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 5 विकेट अपने नाम किए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ यह वनडे क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। जवान अमेरिका में वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5 फिल्मों की लिस्ट की जगह बना ली है। शाहरुख खान की फिल्म इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। औरंगाबाद तालुका के अलग अलग सरकारी विभागों के अधिकारियों ने सरकारी वाहनों को निजी कार्यों के लिए उपयोग किया। उबर और इंडियन नेवी ने मिलाया हाथ, कंपनी देगी एक खास सुविधा। हैदराबाद होटल में बिरयानी के साथ एक्स्ट्रा दही मांगने पर बेरहमी से पिटाई, शख्स की हुई मौत। यूपी से राजस्थान तक बारिश ने किया बेहाल, पिछले 24 घंटे में यूपी में 19 लोगों की मौत। इंडिगो फ्लाइट में यात्री पर यौन उत्पीड़न का लगा आरोप, मामला दर्ज। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल से केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।